two types of sentences we have done yesterday. First is assertive. This is having two parts, affirmative and negative. Have you any doubt in both of these? No. Second one? We have done yesterday both these. Okay? WS family and how to change the tenses in that speech and how to change the pronouns into indirect speech. Okay? Today we will do optative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. Okay? First we will do imperative sentences. Imperative sentences. What type of sentences are they? The sentences which shows command, threat, request, suggestion, order, advice, and what, etc. Whatever. ठीक है? The sentence which shows command, you will shows it command, and treat, request, suggestion. Request कहाँ आ जाएगा? जहाँ पर please दे रखा है, वहाँ पर क्या आएगा? Request. Okay? Now how to change this type of sentences into indirect speech? The teacher, for example, the teacher said to the peon, ring the bell. Ring the bell. Ring the bell. The teacher क्या करेगा यहाँ पर? कौन सी आ रही है? कमांड किया, थ्रेट किया, रिक्वेस्ट किया या सजेशन दिया या उसको एडवाइस दिया या ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया उसको, ऑब्वियसली. द टीचर ऑर्डर्ड द peon. Now you know very well that imperative sentences always start with V1. ठीक है? तो उसके बाद क्या लगाओगे आप? The teacher ordered the peon to ring the bell. Is that clear? यहाँ पर जो सेंस निकल रही है, जो सेंस सेंटेंस से पता चल रही है, उस सेंस के अनुसार ये यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, and then to then verb की first form and then rest of the sentence will be there. Is that clear? Yes. Any sentence you can say me. For example, accept this job. Accept this job. Said the mother to her son, don't leave this opportunity. There are two sentences. The mother said to her son. तो क्या लगाओगे आप? The mother क्या किया उसने? Accept this job of her son. The mother advised or suggested. Advised or suggested her son. Suggested her son to accept that job offer. To accept that job offer and not to leave. And not to leave. Don't leave है ना? Not to leave आ जाएगा. Not to leave the इसका क्या जाएगा? That opportunity. That opportunity. Is that clear? Yes. समझ आ गया? Yes. जैसे next sentence है, the doctor said to the patient, don't worry, just take the medicine on time and take proper rest. ठीक है? The doctor क्या करता है? एडवाइस करता है या क्या क्या करता है? सजेस्ट करता है. The doctor suggested the patient not to worry.
नॉट टू वरी। क्या है? डोंट वरी है ना, उसको आप चेंज करेंगे नॉट टू वरी, जस्ट टेक एंड advised to take the medicine on time and take proper rest। सेंटेंस जो बाकी का है वो ऐसे आ जाएगा। सिर्फ हमारे को यहाँ पर सेंस देखनी है कि जस्टिस की सेंस है या एडवाइस की सेंस है, कमांड की सेंस है, रिक्वेस्ट की सेंस है, ठीक है, या थ्रेट की सेंस है। एक चीज और भी रहती है यहाँ पर, फॉरबिड। जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा था, तो वहां पर एक चीज और भी लिख लेना, क्या? फॉरबिड। अब मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ फॉरबिड का। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। फॉरबिड मीन्स मना करना, ठीक है। फादर said to his son, don't mix with bad boys। Don't mix with bad boys। ठीक है, समझ आया? अब क्या कह रहा है? उसको मना कर रहा है ना? Yes, sir. मना कर रहा है, तो आप दोनों ही तरीके से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। देखिए, फादर advised his son not to mix with bad boys। सेम, ओके। अब मैं इसी को ये यूज करते हुए बना रही हूँ फॉरबिड, ठीक है। मना ही तो किया है ना, मना हम वैसे भी कर सकते हैं सजेशन के तौर पे। ये तो देखो, सजेस्ट तो हमने अपने आप से आइडिया लगाया है, एडवाइस किया बच्चे को कि आप बुरे बच्चों के साथ नहीं रहोगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, फादर एडवाइस हिज सन नॉट टू मिक्स विद बैड बॉयज। अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फादर forbid his son to, फिर नोट यहाँ पर आ गया अपने आप में, ठीक है। forbid his son to mix with bad boys। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. अब कोई और सेंटेंस हो? चलिए, अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विषय को सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Yes. What type of sentences these are? Exclamatory. What does mean by exclamation? Exclamatory. Yes. Sudden feeling. We have no time to think about that thing. हमें उस चीज के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। सपोज करो आप आराम से बैठे हुए हो, सो रहे हो, खाना खा रहे हो, व्हाटएवर, आपके पास कोई आता है और आपको कोई खुश खबर सुनाता है, तो अब क्या होगा? एकदम से क्या करोगे आप? पूरा वी हैव वन द मैच, ठीक है, आई हैव गॉट दोज थिंग्स व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। आप किसी अच्छी चीज के अलावा का वेट कर रहे हो और वो चीज आपके पास आ जाती है एकदम से, तो आप कितने खुश हो जाओगे ना। क्या उस टाइम पर आपको टाइम लगा? नहीं ना। सडन फीलिंग अराइज देयर, ठीक है। फिर कोई आपको कोई बैड न्यूज दे दे कि भाई आपके ऐसे ऐसे रिलेटिव का ना वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करोगे आप? एकदम से क्या करोगे आप? एकदम से बड़े परेशान हो जाओगे, पता है ना, एकदम से बहुत परेशान हो जाना। तो वो भी क्या है? सडन फीलिंग है ना। तो जहां पर हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सडन अराइज होती हैं, डजंट टेक एनी टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग, जो सरप्राइज को हमारे को सरप्राइज भी देती है जो चीजें, सडन सरप्राइज, ठीक है। जैसे देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, हाउ ब्यूटीफुल द
स्पीच पहले। ठीक है, हम इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, अब देखिए हाउ ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या सरप्राइज हो रहा है कि कितनी सुंदर है ये। ठीक है, द पेंटिंग लुक्स से सुमित। तो क्या आएगा सुमित क्या एक्सक्लेम्ड विद यस मैम। एक्सक्लेम्ड with happiness that the painting was looks है ना looks तो क्या है था the painting looked very beautiful that the painting looked very beautiful. ओके ठीक है, टेंस ऐसे चेंज होंगे जैसे प्रेजेंट और पास्ट में लगेगा, पास्ट का सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसे वन वाज वन। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये है एक्सप्लेन विद हैप्पीनेस, एक्सप्लेन विद जॉय, एक्सप्लेन विद सोरो। दुख की बात है तो क्या आएगा एक्सप्लेन विद सोरो। खुशी की बात है तो हैप्पीनेस और जॉय। ठीक है, चलिए पूरा my team has won said the coach said the Coach। बुक में दिए गए हैं, मैं इनको करवा रही हूँ। तो क्या आएगा the coach exclaimed with joy। जीतने की बात है तो exclaimed with joy that my team का क्या हो जाएगा their team had won। has won का क्या हो जाएगा had won। ठीक है, the principal said to the student well done, I wish you good luck for your next tournament। the principal क्या किया well done क्या है अपलोड करना। क्या अपलोड का मतलब क्या होता है किसी की अप्रोज मतलब किसी को प्रशंसा करना किसी की। ठीक है, तो अप्रेज भी लिख सकते हैं हम, इसको अपलोड भी लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल अपलोडेड द स्टूडेंट एंड विश देम आई विश यू गुड लक। तो जहाँ पर विश करने की बात आती है तो क्या आ जाएगा विश। कहते हैं ना कि उसको विश कर दो, बर्थडे विश कर दो, ठीक है, उसको एनिवर्सरी विश कर दो, तो क्या हो जाता है उसमें विश। तो विश क्या विश देम गुड लक, विश देम गुड लक फॉर देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। ठीक है, योर आ गया ना फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट, फॉर योर देयर नेक्स्ट टूर्नामेंट। चलिए माय grandmother said to me may you be successful in life, may you be। देखिए my grandmother said to me, my grandmother said to me may you be successful in life। ठीक है, जबकि पहले क्या था कि इन सेंटेंसेस को जहां पर मे से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते थे क्या ऑप्टेटिव। क्या बोलते थे ऑप्टेटिव। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इसी में शामिल कर लिया गया है, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कर लिया गया है। ठीक है, मे यू सक्सेसफुल इन लाइफ। तो क्या होगा my grandmother lovingly क्या wished me success in life। प्यार से करती है ना वो। Yes, ma'am। lovingly my grandmother lovingly wished क्या may you क्या है me। ठीक है, lovingly wished me success in life। सक्सेसफुल लाइफ। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं grandmother wished that ये भी लगा सकते हैं wished that मुझे क्या जाएगा I might be successful in life।